वहीं शासन सचिवालय में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक ऐसी सोच, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा राष्ट्रभक्त जिन्होंने सदैव अपने मन में राष्ट्र को प्रथम रखा। उनकी सोच में गांव का ग्रामीण रहा, उनकी सोच में किसान रहा, उनकी सोच में युवा रहा, उनकी सोच में महिलाएं रही, उनकी सोच में वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति रहा जो सरकार की ओर से उम्मीद की दृष्टि से देखता है, योजनाओं के लाभ उस तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस विराट विजन ने। और अब मैं निवेदन करता हूं, commemorate the 101st anniversary of former Prime Minister Bharat Ratna late Shri Atal Bihari Vajpayee ji to honor his commitment to transparent, accountable and effective governance. To quote Honorable Prime Minister Modi, Bharat is changing and it is changing rapidly. People's self-confidence, their trust in government and the commitment to build a new Bharat is visible everywhere. The Prime Minister's words echo Rajasthan's journey towards Viksit Rajasthan 2047. The 2-year anniversary celebrations of the government of Rajasthan under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma ji, titled 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, have been successfully held over the past 2 weeks. Over the past 15 days, good governance has been celebrated across all Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Tehsils, subdivisions and districts of Rajasthan, with Viksit Rajasthan Yatra being undertaken by 200 Vikas Raths. The government's policy of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas to reach the last mile citizens with a saturation approach has been successfully implemented. Rajasthan's comprehensive vision document Viksit Rajasthan 2047 presents the state's welfare architecture guided by the principle of Antyodaya, ensuring upliftment and development of every person in the state. This philosophy has marked a decisive shift to inclusive empowerment, with government targeting 100% of saturation in every flagship scheme. Rajasthan has tried to raise the standards of living, formalize jobs, ensure clean water, healthier lives, housing for all, health for all, food security, and promoted cultural and tribal heritage. Over the past 2 weeks, the Honorable Chief Minister has interacted with thousands of beneficiaries under priority sector schemes, farmers, women, youth, and participated in campaigns for Swachhata, road safety, Run for Viksit Rajasthan, Rozgar Melas, Gramin Seva Shivers, Sehri Seva Shivers, promotional events for tourism development, and a number of new policy initiatives have been launched. This 360-degree engagement has brought forth tangible changes witnessed in people's lives over the past 2 years. Rajasthan's districts have actively participated in the Sushasan Saptah Prashasan Gaon Ki Aur 2025 campaign of Government of India from December 19 to 25, 2025. Under this campaign, Rajasthan has achieved 5.53 lakh public grievances have been redressed and 63.36 lakhs applications have been disposed under service delivery. This represents the highest achievement by any state or union territory in India. My congratulations to all district collectors and all the secretaries of departments who made this possible. On a personal note, I have served in Prime Minister Vajpayee's government as a Deputy Secretary and as a Private Secretary to the External Affairs Minister and Finance Minister from 2000 to 2004. And I have immense respect and appreciation for his yeoman services to the nation. This 2-week celebration of good governance led by the Honorable Chief Minister of Rajasthan
represents the best tribute to the legend of Prime Minister Vajpayee ji on his 101st birth anniversary. Sir, we rededicate ourselves to the principles of good governance, transparency, accountability, efficiency, integrity, responsiveness, and rule of law, and for ushering in the next generation administrative reforms with a nation first, citizen first approach. With these remarks, I extend a warm and hearty welcome to the Honorable Chief Minister and all distinguished colleagues to the celebrations of the Sushasan Divas 2025. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। और सुशासन की दिशा में प्रयासों की कमी नहीं है हमारी ओर से। हाल ही में 2 दिन पहले ही आपने सेक्टोरल ग्रुप्स बनाकर ये सिद्ध किया है कि किस प्रकार से हम सुशासन की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। अब वह क्षण जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, मेरा निवेदन आप सभी से कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सभी ब्लॉक लेवल तक जुड़े हुए अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आप सभी से मेरा निवेदन, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और हमें सुशासन की शपथ दिलाएं। मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करूंगा। मैं अपने सार्वजनिक एवं निजी आचरण में पूर्ण रूप से आर्थिक शुचिता रखूंगा। मैं सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति से जनहित में करूंगा। मैं बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करूंगा। मैं राज्य के सतत विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों के माध्यम से राजकीय कार्यों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण संपादन हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। भारत माता की जय। चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय से निवेदन, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन एवं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए जिला कलेक्टर, उपखंड से जुड़े सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार,
ग्राम पंचायत स्तर पर जुड़े सभी हमारे पटवारी, सेक्रेटरी, अन्य सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज ऐसे एक महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक ऐसे कवि हृदय, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम एक युग पुरुष, जिसके जीवन में किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति जितनी दृढ़ता के साथ काम करते थे, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम हमेशा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा जो ध्येय था वो ये कि जो भी काम मिलता है उसको ठीक प्रकार से करें। हम जिस जिम्मेदारी में हैं, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम उसका निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। उनका जीवन, उनका दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जन सेवा का होता है, और उस जनसेवा के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं, जिसके लिए हमें चाहे कोई राजनेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जो हमें दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम पूरा करें। यह आयोजन हमारे राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जिनको हमसे आशा और उम्मीद है, उनकी आशा और उम्मीदों को हम पूरा कर पाएंगे। हमारे लिए सुशासन एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके केंद्र में केवल सरकार नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता है। और प्रदेश की जनता जब सुशासन तभी संभव है जब नियम स्पष्ट हों, अधिकारी संवेदनशील हों, सरकार सतत उत्तरदायी बनी रहे। सुशासन वास्तव में तभी सार्थक है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे, जब शासन गांव, ढाणी, दूरस्थ अंचल और वंचित वर्ग के द्वार तक स्वयं पहुंचे। तभी हम कह सकते हैं कि स्वराज का सपना साकार हो रहा है। सुशासन का अर्थ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां शासन जनता की जरूरतों को समझकर समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करे। अगर समय से नहीं मिलती है तो उसमें भी परेशानी होती है। सुशासन का आधार 3 स्तंभों पर टिका है: विश्वास, संवाद, परिणाम। अगर इनको हम तक पहुंचते हैं तो उनके मन में सरकार के प्रति, अधिकारी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो भाव उनके अंदर पैदा होता है, और वो भाव ही आवश्यक है क्योंकि हम सभी उसके उत्तरदायी हैं। ये हमारी उस जवाबदेही की पुष्टि करता है जिसे हम जनता की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है
कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में आम जन के लिए परेशानी होगी। हम कहते हैं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। हमें इसी मंत्र को धरातल पर उतारना है। शासन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारा किसान, हमारा श्रमिक, हमारी महिला, हमारा युवा, वंचित वर्ग अनुभव करे कि सरकार वास्तव में उनके साथ खड़ी है। हमने सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है और ये इसलिए कि उन आम जन की जो छोटी मोटी आवश्यकता है उनको हम पूरा कर सकें। इन शिविरों के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि प्रशासन गांव में जाए, लोगों की समस्या सुने और उनका निस्तारण करे। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत विगत 2 वर्षों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। आज के युग में ई गवर्नेंस पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार है। हमने प्रशासन को डिजिटल माध्यम से सुदृढ़ किया है। ई पोर्टल्स, एसएसओ पोर्टल्स, मोबाइल आधारित सुविधाओं ने नागरिकों के समय, धन और ऊर्जा की बचत की है। अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। शिकायत निवारण तंत्र किसी भी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा होती है। आज प्रदेश में राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं की प्रभावी सुनवाई और उनका निस्तारण किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया है। साथियों, प्रदेश में सुशासन की स्थापना में शासन सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कोई चूना पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। ये राजस्थान की जनता की आशा और विश्वास है। यह उन लोगों की जिनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। इसलिए शासन सचिवालय सरकार के हृदय की तरह है। राज्य की सभी नीतियां, योजनाओं का निर्माण यही होता है। आप सब अधिकारी और कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं, जिनकी मदद से सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाता है। शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश भर के लोग सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस जगह पर उनकी परेशानियों का हल उन्हें आवश्यक रूप से मिलेगा। ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बनता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत गति से और बेहतर ढंग से समाधान हो। निष्ठा और समर्पण के साथ आपके द्वारा दी गई सेवाएं न केवल प्रदेश में सुशासन की स्थापना में मददगार बनेंगी, बल्कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त कर